Assalamu alaikum to all my students. I am your English teacher from Metropolitan Foundation School. How are you all? I hope you all are fine and spending a quality time with your family at home. May Allah Almighty always stay bless you all. So before you should start your work in your copy, keep the instructions in your mind. First of all, you should do this work in your copy in a very neat and clean handwriting. Write the date on your page. You have to make a title page of a following chapter or unit. First letter should be capital. Use finger space between the words. You must follow all these instructions before starting your work. Now here I am to explain your homework assignment of English B of class 2. It's a month of September, and in month of September we have completed our unit number 32. Its name is The Friendly Crow. Now in this video we are going to start our syllabus work, the singular, plural and word opposite. Now move to the next slide. We have a topic. Its name is singular and plural. Singular and plural. Okay, now we have a definition of a singular and plural nouns. A singular noun refers to only one person, place or thing. A singular noun refers to only one person, place or thing. Students, now listen to me very carefully. You have to understand it that what is the difference between a singular and a plural. Okay, now definition is a singular noun refers to only one person, place or thing. It means कि singular जो है वो represent करता है किसी भी एक चीज़ को, किसी भी एक जगह को, एक नाम को या एक चीज़ को या किसी एक person के name को show करता है singular. A singular noun refers to only one person, place or thing. Singular means one, मतलब जो है सिंगुलर जो है वो शो करता है वन पर्सन के नेम को, किसी एक शख्स के नेम को, किसी एक जगह के नेम को, किसी चीज़ के नेम को या किसी भी जगह के नेम को शो करता है सिंगुलर. आइदर के वो चीज़ जो है एक होनी चाहिए तो वो किस में आएगी, सिंगुलर में. देन वी हैव अ प्लूरल नाउन. अ प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग. अच्छा, सिंगुलर के बिल्कुल जो है अपोजिट है. सिंगुलर में हमने किसी एक चीज़ की बात की थी, प्लूरल में जो है हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं. देन वी कॉल इट अ प्लूरल. ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मोर देन वन वी कॉल इट प्लूरल. किसी भी चीज़ में जब हमें या किसी भी सेंटेंस में हम कोई भी एक से ज़्यादा चीज़ देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लूरल. अगर वो चीज़ एक में काउंट हो रही है तो देन वी कॉल इट सिंगुलर, अदरवाइज वी कॉल इट प्लूरल नाउन्स. A singular noun refers to only one person, place or thing. Either a plural noun refers to more than one person, place or thing. प्लूरल नाउन में हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं. अगर किसी जगह का नाम एक से ज़्यादा में शो हो रहा है तो देन वी कॉल इट प्लूरल. अगर किसी पर्सन का नेम है और वो एक से ज़्यादा है नेम तो भी हम उसको प्लूरल में शो करते हैं. कोई चीज़ है अगर वो एक से ज़्यादा है तो भी वो प्लूरल में आती है. बेसिकली आप याद रखें, सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन. सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन. In this slide we have an example related to singular and plural. The first one is window. Window. W-I-N-D-O-W. Window. W-I-N-D-O-W. Window. इसमें आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में जो है विंडो जो है वो एक खिड़की की बात हो रही है तो विंडो किस में आएगा, सिंगुलर में. इसी के बिल्कुल नीचे एक और एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने एस लगाया है. W-I-N-D-O
WS windows, WINDOWS windows. Window represent the singular noun and windows represent to the plural nouns. जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो हम प्लूरल में क्या ऐड करते हैं? एस. ठीक है. विंडो मीन्स वन एंड विंडोज़ मीन्स मोर देन वन. विंडो में हम एक खिड़की की बात कर रहे हैं और जब किसी नाउन में एस लग जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो किसको शो करता है? प्लूरल को. ठीक है. नाउ आई एम रीड दिस डेफिनेशन वन मोर टाइम. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अ सिंगुलर नाउन refers to only one person, place or thing. A plural noun refers to more than one person, place or thing. Example: window, windows, window, windows. ठीक है. Singular means one and plural means more than one. Basically, a singular noun names only one person, place, thing or idea. A noun that names two or more people, place, things or ideas is a plural noun. Most of the time, making a singular noun plural is simply as adding an s to at the end of the word. ठीक है. सिंगुलर नाउन में जो है हम हर किसी भी एक चीज़ की बात करते हैं, जबकि प्लूरल में हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं. और जब भी हमें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है तो हम अपने वर्ड के एंड में क्या लगाते हैं? एस. ठीक है. अपने वर्ड के या नाउन के एंड में हम एस लगाते हैं, जो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है. ठीक है. अ सिंगुलर नाउन नेम्स ओनली वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. A noun that names two or more people, places, things or ideas is a plural noun. Most of the time, making a singular noun plural is as simple as adding an s at the end of the word. Now move to the next slide. Now in this slide, we are going to learn the rules how to make singular to plural by adding s or es. Now we are going to learn some rules. Now listen to me very carefully. The first one is most noun just add s. Most nouns just add s. वो कह रहे हैं कि जब हमें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है तो कुछ नाउन्स में हम सिर्फ s लगा के प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं. यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी दी हुई है, जैसे है कैट, CAT, कैट. कैट मीन्स हम यहाँ पे एक कैट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमने इसको प्लूरल में कन्वर्ट किया तो हमने इसके लास्ट में क्या ऐड किया? एस ऐड किया, ताकि वो बहुत सारी कैट्स में हम प्लूरल को रिप्रेजेंट कर सकें. ठीक है. द सेकेंड वन इज़ मैनी नाउन्स एंडिंग विथ अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई चेंज द वाई टू आई एंड एड ES. अच्छा, इस रूल में कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई नाउन है, सिंगुलर नाउन, जिसके लास्ट में वाई आ रहा होगा, तो जब हम उसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो हम वाई को रिमूव करके उसकी जगह क्या ऐड करेंगे? IES. ठीक है. मैनी नाउन्स एंडिंग विद अ कॉन्स्टोनेंट प्लस वाई चेंज द वाई टू आई एंड एड ES. कह रहे हैं कि जब भी किसी सिंगुलर में आपके पास लास्ट का जो वर्ड लेटर है वो वाई होगा, तो आपको वाई को रिमूव करके उसके साथ क्या लगाना है? IES. देन वी मेक इट अ प्लूरल. जैसे यहाँ पे है सिंगुलर है बेबी, BABY, बेबी. बेबी के लास्ट में वाई लास्ट में आ रहा है, तो हम यहाँ पे वाई को हटा के उसकी जगह क्या ऐड करेंगे? IES. The third rule is nouns ending with a vowel y just add s. वो कह रहे हैं कि ऐसे नाउन्स जो एंड हो रहे हों किसी वॉवल पे या फिर वाई पे, तो आप उनके लास्ट में क्या लगाएंगे? s लगाएंगे जब हम वहाँ पे प्लूरल को मेक कर रहे होंगे. ठीक है. एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है TOY टॉय, TOY टॉय, TOY टॉय. तो जब भी हम प्लूरल मेक करेंगे तो हम y के साथ क्या लगाएंगे?
एस ऐड करेंगे, ठीक है। हम वाई के साथ क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस। नाउन्स एंडिंग विथ अ वॉवेल प्लस वाई जस्ट ऐड एस। वो कह रहे हैं कि ऐसे नाउन्स जो एंड हो रहे हों किस वाई पे, या फिर वाई से पहले जो उनका लेटर है वो वॉवेल होगा, तो हम उनके लास्ट में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। The fourth rule is nouns ending with ch, sh, ss or x we add es to make it plural। वो कह रहे हैं ऐसे नाउन्स या ऐसे सिंगुलर जिनके लास्ट में ch आ रहा हो या sh शो हो रहा हो या ss या x, तो आप उनके प्लूरल को बनाते वक्त लास्ट में क्या लगाएंगे, es। Now we have an example, ch URCH चर्च। अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि चर्च के लास्ट में CH आ रहा है, तो हम यहाँ पे प्लूरल बनाते वक्त इनके आगे क्या ऐड करेंगे, ES, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चर्चेस, CHURCHES चर्चेस। नाउन्स एंडिंग विथ CH, SH, SS और X we add es to make a plural. Okay, the fifth one is many nouns ending with f or fe, changing this to av and at es। वो कह रहे हैं ऐसे नाउन्स या ऐसे सिंगुलर जो लास्ट में एफ पे एंड हो रहे हों, तो हम एफ को रिमूव करके वहाँ पे क्या ऐड करेंगे, VES, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि हमारे पास एग्जाम्पल है सिंगुलर की लोफ, LOAF लोफ, LOAF लोफ। अब इसके लास्ट में एफ़ आ रहा है, तो हमने यहाँ से एफ़ को रिमूव किया, और जब हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना था तो हमने एफ़ की जगह रिमूव करके क्या लगाया, VES, ठीक है। ओके, द सेकेंड लास्ट इज nouns ending with a vowel we add s। वो कह रहे हैं ऐसे nouns जो एंड हो रहे हों किसी वॉवेल पे, तो आप उनके लास्ट में क्या लगाएंगे, s, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया हुआ RADIO रेडियो, और रेडियो के लास्ट का जो लेटर है ओ, वो क्या है, वॉवेल, तो हमने यहाँ पे प्लूरल बनाते वक्त क्या लगाना है, यहाँ पे s शो करना है, RADIOS रेडियोस, ठीक है। ओके, द लास्ट रूल इज नाउन्स एंडिंग विथ अ कॉन्स्टोनेंट प्लस ओ वी एड ES टू मेक अ प्लूरल। वो कह रहे हैं ऐसे नाउन्स जो किसी के एंड हो रहे हों किसी कॉन्स्टोनेंट पे या किसी ए पे या ओ पे, तो आपने उनके लास्ट में क्या लगाना है, ES लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे VOLCANO वॉल्केनो, ठीक है। ऐसे नाउन्स जो स्टॉप हो रहे हों, या नोट किया होगा आपने ऐसे नाउन्स जो जिनके लास्ट में ओ आ रहा होगा या वॉवेल आ रहा होगा, तो आपने उनके साथ क्या ऐड करना है, प्लूरल बनाते वक्त ES लगाना है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द रूल्स वन मोर टाइम, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। टू चेंज द नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल वी नॉर्मली ऐड S at the end of the word. Nouns that end with S, SS, SH, CH and X can be made plural by adding ES. Nouns that end with letter Y can be made plural by changing Y to IES to make it plural. It means कि जो है ऐसे जो सिंपल नाउन्स को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो हम वहाँ पे S लगा के अपना प्लूरल कंप्लीट करके हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में S, SS, SH, CH या X शो हो रहा होगा, तो हम प्लूरल बनाते वक्त वहाँ पे क्या ऐड करेंगे, ES। अदरवाइज़ अगर किसी नाउन्स के एंड में, सिंगुलर के एंड में लेटर Y होगा, तो आप प्लूरल को किस में चेंज करेंगे, IES में चेंज करेंगे। Y को हमेशा किससे रिप्लेस करेंगे, IES से, टू मेक इट अ प्लूरल। Now move to the next slide. Now it's a copy work. We have a singular plural. I have given you the 5 singular plural. You have to write it in your copy. Okay, the first one is
The first one is mobile. M-O-B-I-L-E, mobile. M-O-B-I-L-E, mobile. Okay, now we add S to make it plural. M-O-B-I-L-E-S, M-O-B-I-L-E-S, mobiles. Okay, the second one is key. K-E-Y, key. हमने पहले भी इससे पहले पढ़ा था कि जिनके सिंगुलर के लास्ट में वाई होगा तो हम वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या है, वॉवेल है, तो हम इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वाई से पहले वॉवेल ना होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते, IES लगाते, ठीक है। KEYS, कीज, ठीक है। द थर्ड वन इज रूफ. ROOF, रूफ. Its plural is ROOFS, roofs. Okay, the fourth one is HALF, half. HALF, half. And its plural is HALVES, halves. HALVES, halves. Okay, the fifth one is life. LIFE, life, and its plural is LIVES, lives, ठीक है। I have given you the 5 singular plural. You have to write it in your copy, then learn it very properly. Now move to the next work. Our next work is word opposite. I have given you the 5 word opposite also. You have to write it in your copy in a very neat and clean handwriting. Okay, the first one is white. The first one is white, and its opposite is black. White, black. अपोजिट जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, एक दूसरे के उलट अल्फाज होते हैं, वो वर्ड्स अपोजिट होते हैं, ठीक है। वाइट and its opposite is black, and its opposite is black. The second one is clever. CLEVER, clever. CLEVER, clever. Clever means chalak, and its opposite is foolish. FOOLISH, foolish. Foolish means बेवकूफ़. The third one is dirty. DIRTY, dirty. And its opposite is clean. CLEAN, clean. Dirty means ganda and clean means saaf. Okay, the fourth one is few. FEW, few. Few means kuch ya chand, and its opposite is many. MANY, many. Many means बहुत ज़्यादा. Okay, the fifth one is careful. CAREFUL, careful, and its opposite is careless. KARELESS, careless. Okay, now it's a word opposite. I have given you the 5 words opposites and you have to write it in your copy. First you have to do the singular plural, then you have to do the words opposite in your English B copy. I am going to repeat this again one more time. Now listen to me very carefully. The first one is white and its opposite is black. The second one is clever and its opposite is foolish. The third one is dirty and its opposite is clean. Fourth one is few and its opposite is many. Okay, the last one is careful and its opposite is careless. You have to do this work in your English B copy in a very neat and clean handwriting. Now students, if you have any difficulty regarding this video, so you want to ask me on WhatsApp. Thank you and Allah Hafiz.